Hello students, how are you all? I hope you guys all are well. I'm your teacher Mona, and in our previous class we have discussed the parts of the speech. We have discussed nouns, pronouns, adjectives, and now we have in today's lecture we will discuss the verbs. So verbs has the very broad criteria because verbs in the English grammars are very important for the communication in English and when we want to the explore of the English grammar. So verbs has a very broad criteria. So if you want to know if you want to learn the verbs, you just need to understand that what are the verbs and how many types of the verbs we have in English grammar. So this will be important for you. So when we talk about the verbs is we can say the any kind of the action called the verbs. So verbs like running, dancing, okay, any kind of the action called the verbs. And we have modal verbs, auxiliary verbs, helping verbs, have, has. This kind of verbs are called the modal auxiliary verbs, or we can say helping verbs. And the helping verbs played the important role in the English grammar and the our sentences, and we have the interrogative sentence, exclamatory sentence, we have assertive sentence. So in all kind of the sentences verbs plays the important role. So this will be important for you. So without wasting your time, let's start our lecture. And you have a passage, and through this passage you will easily understood that what are the verbs. So let's start. We have, I am a student. I have a sister. She is also a student. Both my parents are teachers. They teach at a college. Okay. So just read carefully the underlying words. They spend a lot of time on books. We have a family library. There are lots of books in our library. We buy new books every month. We enjoy reading books. Some of my friends borrow books from us. The underlined words in the passage state something or indicate action. They are called verbs. The words teach, spend, buy, enjoy, borrow in this passage refers to any kind of the action. So, as I told you, any kind of the action is called the verb. Okay, so any kind of the action, it means I told you, as I told you, running, dancing, swimming, any kind of the action called the verbs. So, refers to action. They are called the action verbs. Teach, spend, buy, enjoy are called the action verbs because they are presenting the any kind of the action. Or on the other hand, am, have, is, am, are indicate the condition or the states, and they are called the to be verbs. They are called the helping verbs. They are called the to be verbs. So in this paragraph, you just need to learn am, have, is, are. Okay, have, again, are, or as I circle these some verbs, all these verbs called the helping verb or to be verbs. These are called the verbs. Okay, and in our communicative language, we mostly use this kind of the verbs. As I told you that if you want to that I am a student, make student to, तो आप बोल सकते हो make student to, I am a student to, यहाँ पे आपका be verb का use आ गया. You are a student, यहाँ पे भी आपका be verb का use आ जाएगा. My parents are teachers, again आपका be verb जो है उसका use आ गया. They teach at a college. Okay, they spend a lot of money on books. So teach, spend, this kind of the verbs, buy, borrow, showing any kind of the action. That's why these verbs called the action verbs. So if you are going to learn the verbs, you just need to understood that what are the verbs, what are the auxiliary verbs, what are the be verbs, or what are the action verbs. It is most important for you. Next we have
Now identify to be verbs and action verbs in the following passage. तो अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वर्ब आपकी बी वर्ब है और कौन सी वर्ब आपकी एक्शन वर्ब्स है. ओके, सो जस्ट रीड द पैसेज. माय ब्रदर इज अ बैंकर. ओके, माय ब्रदर इज अ बैंकर. Circle. He works for a private bank. He also runs a business. Some of his friends help him in his business. He earns a lot of money. He maintains our family very well. We are happy family. So here is and are. Is and are the be verbs, or we can say helping verbs. Okay, both of the verbs are the be verbs, but works, runs, help, earns, maintains, these all these verbs showing any kind of the action. That's why all these verbs called the action verbs. Okay, so in this way we can easily identify the verbs. Okay, I hope you are getting my point. आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं. ठीक है, next, read the following sentences and see the time reference and forms of the verbs in bold. ओके, सी द टाइम रेफरेंस. सो अब हमें टाइम के रेफरेंस में देखना है. आई इन्वाइटेड हिम, एनी काइंड ऑफ एक्शन, वर्ब है, टू द पार्टी. ही हैज ऑल्सो इन्वाइटेड मी अगेन to a dinner at his house. She entered the class late yesterday, but today she has entered the class on time. Nasir failed in the exam. Okay, all these under bold words showing the that are the action verbs. The verbs refers to a past time and also past action, but results of which are still present. Okay, and d or ed has been added to the base forms to the main verbs. So the conclusion is when we want to the verbs showing the verbs and showing the action that happened in the past, but the consequences of that action we are facing at the present time. So when we want to present any kind of the verbs of the past tense, so we just need to d or ed in the our verb form. Okay, so in this way we can easily change the form of the verbs from present to the past. Okay, now we have the base form verbs from past tense, past participles of the verbs, and they are called the regular verbs also. Okay, so on the other hand, there are many verbs that do not take regular d or ed called the participles forms, and they called the regular irregular verbs. So in our previous lectures, I also told you that what are the regular verbs and what are the regular irregular verbs. So regular verbs are called the main verbs to form past tense, past participles of the verbs. They are called the regular verbs. When we use, जब भी हम use करेंगे कौन सी verbs आपके past main verbs को use करेंगे as a past tense में और past participle tense में, तब वो क्या होंगे आपकी regular verbs होंगी, चाहे हम उसमें d और ed लगा कर करें. And अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग they are the many verbs which do not take d और ed form. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि डी और ईडी फॉर्म नहीं लेती हैं पास्ट या पार्टिसिपल बनाने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, इररेगुलर फॉर्म कहते हैं. तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए होंगे, तो उसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी आपकी रेगुलर और इररेगुलर वर्ब होती हैं. जैसे कि आई रोट अ लेटर. तो रोट ये क्या है, आपका पास्ट फॉर्म है राइट का. ठीक है, राइट आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है राइट, रोट और रिटर्न. रिटर्न आपका पार्टिसिपल फॉर्म होता है. ठीक है, तो रोट जो है इसने राइट में ए और डी लगाकर तो नहीं यूज किया है पास्ट टेंस में, इसमें क्या हुआ है, रोट यूज हुआ है. ठीक है, जस्ट मीनिंग आपका चेंज हो गया है. तो यहाँ पर ये जो होगी ये कौन सी वर्ब हो जाएगी आपकी, इररेगुलर वर्ब ये हो जाएगी. ठीक है, इसको हम इररेगुलर वर्ब कहेंगे. ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स, ये पार्टिसिपल फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये भी अगेन हम क्या बोलेंगे, इसको इररेगुलर वर्ब कहेंगे. He went to Dhaka. Went is the past form of the
गो, तो अगेन हम इवेंट को भी क्या कहेंगे, ये भी आपकी इरेगुलर हो जाएगी। शी हैज गोन टू स्कूल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रेजेंट का हम पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए डी और ईडी का यूज नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो सारी फॉर्म्स हैं, जब डी और ईडी नहीं यूज किया जाता तो ये कौन सी फॉर्म्स होती हैं, आपकी इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। These are the examples of the irregular verbs because none of these take D or ED for forming the past tense or past participle. Okay, so in this way, we can easily identify that what are the regular verbs and what are the irregular verbs. And in your exam, आप लोगों को question आ सकता है कि आप रेगुलर वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, इरेगुलर वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, या फिर आपको डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, next we have some regular verbs. So some regular verbs we have like accept, accepted, accepted. So यहाँ पर हम इनको रेगुलर वर्ब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्ट में हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट ईडी को ऐड किया है ना। इस तरीके से आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड, ब्रश, ब्रश्ड, ब्रश्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। सो ऐसी कोई भी वर्ब, सिर्फ ये वर्ब्स नहीं, ऐसी कोई भी वर्ब इंग्लिश ग्रामर में जब आप वर्ब्स को बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ोगे, तो ऐसी कोई भी वर्ब्स जो कि अपने साथ में डी या ईडी लेकर पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाती है, उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और ऐसी कोई भी वर्ब जिसमें आपका डी और ईडी नहीं लेती है, वो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए जस्ट उनका स्पेलिंग चेंज होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो आई होप आपको इस एग्जांपल के थ्रू रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं वर्ब्स के, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्पेसेस विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द रेगुलर वर्ब्स। तो अब आपको यहाँ पर कुछ वर्ब दी है, उसका एप्रोप्रिएट फॉर्म लेकर आपको उनको फिल करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डांस। डांस का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो डांस नहीं होता है, पास्ट आपको डांस्ड हो जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो भी क्या होगा, आपका डांस्ड होगा। ठीक है, डिफीट, डिफीट का क्या होता है, आपका डिफीटेड होता है। अर्न का, ये अर्न आपको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों दिया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली अर्न कर सकते हैं। एंड, एंडेड, और यहाँ पर भी क्या आएगा, आपका एंडेड आ जाएगा। फियर, फियर्ड, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिक्स आ जाएगा। गेन का क्या आ जाएगा, गेन्ड आ जाएगा। ठीक है, गैदर का क्या आ जाएगा, गैदर्ड आ जाएगा। तो सिंपल ये रेगुलर फॉर्म से, इसीलिए इसमें ईडी लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, होप, होप्ड, होप्ड, होप्ड। ठीक है, जंप का करेंगे तो क्या आ जाएगा, जंप्ड आ जाएगा। ये क्या है, आपका किक है, तो किक्ड आ जाएगा। लाफ, लाफ्ड, अगेन ये क्या आ जाएगा, आपका लाफ्ड आ जाएगा। लाइव, लाइव्ड, मार्क, मार्क्ड, मिक्स्ड, मिक्स्ड। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली इनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका ओपन है। ये प्लेड है, प्ले का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लेड होता है। ये क्या है, आपका क्वारल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनको फिल कर सकते हैं। ये क्या है, आपका इंक्रीज है, इंक्रीज्ड, पास्ट पार्टिसिपल लेंगे तो कौन सा आ जाएगा, इंक्रीज्ड आ जाएगा। ये इन्फॉर्म है आपका। नेक्स्ट, ये क्या आ जाएगा, ज्वाइंट आ जाएगा। ठीक है, ये रेन, अगेन ये क्या आ जाएगा, जंप्ड आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, किक आ जाएगा। तो इतनी सारी फॉर्म्स में हमने एक चीज देखी कि ये सारी फॉर्म्स को पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम लोगों ने सिर्फ डी और ईडी ऐड किया है। मतलब कि ये सारी वर्ब्स जो है, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपकी रेगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और इरेगुलर वर्ब्स दे दी गई हैं, जैसे कि अराइज, अराइज इसका आपका पास्ट टेंस अरोज, अराइजन होता है। वेक, ठीक है, अवेक, अवोक, अवेकन, ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है, रेज, रेज कैसी हो जाएगी, रेज, रेज्ड, रेज्ड, तो ये आपकी रेगुलर हो जाएगी। बियर क्या है आपकी, बियर, बॉर, बॉर्न, ये आपकी इरेगुलर होगी, बिकॉज इनमें सब में क्या हो रहा है, आपका
स्पेलिंग चेंज हो रही है। जस्ट डी और एडी हम लोगों ने नहीं लगाया। चूज, चूज, चूजन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्राइव, ईट, एट, ईटन, फेल, फॉल, फेल, फॉलन, फाइट, फॉट, फॉट, गिव, गैव, गिवन। सो ये जो जितने भी वर्ब्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे वर्ब्स में क्या हो रहा है आपका, जस्ट स्पेलिंग चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने गो, वेंट, गोन पढ़ी थी, है ना, राइट, रोट, रिटन पढ़ी थी। तो इन सभी फॉर्म्स में जिसमें स्पेलिंग चेंज हो रहा है वो सभी आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब तक रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हमें हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिसको हमें करना है। हम देखेंगे कि वो एक्सरसाइज हमारी क्या है। ठीक है, नाउ match the past and past participle forms with the base forms of the following irregular verbs. Put the number beside the base form against its parts and past participle form, column 2 and 3. अब ये देखना है आपको, ये क्या दिया है आपको, ग्रो दिया है। इसमें हमें अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ढूंढनी है कौन सी। जैसे ग्रो का क्या दिया है आपको, ग्रोन दिया है, ये ऑलरेडी आपको दे दिया है। ठीक है, हाइड, हाइड का क्या हो जाएगा आपका, हिडन होना चाहिए। तो हिडन देखेंगे हम कहाँ, ये दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे आप नंबर 2 इजिली लिख सकते हो। ये किसका है आपका, नंबर 2 का। नो का क्या होता है, नो, न्यू, नोन। तो नोन देखेंगे हम लोग कहाँ पर दिया हुआ है। ये तो कहीं दिख नहीं रहा है, नो, न्यू, नोन। चलिए दूसरा करते हैं, लैंड। लैंड का क्या हो जाएगा आपका, कुछ और भी तो नहीं है कहीं नीचे, ये दिया हुआ है। अच्छा, ये है नीचे लैंड का। ये किसका हो गया आपका, थर्ड हो गया। और लैंड का लैंड होता है, ये किसका हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, जैसे ये गो, ग्रू, ग्रू दिया हुआ है आपका। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और क्या दिया हुआ है आपका, लैंड हो गया। लूज, लूज का क्या होता है आपका, लॉस्ट होता है, ये दिया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इस पर हम फिफ्थ नंबर डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, मेक, मेक का क्या होता है, मैड होता है, ये सिक्स्थ नंबर आ जाएगा। मीट, मीट का क्या होता है, मैड, ये सेवेंथ नंबर पे आएगा। सी का क्या होता है, सॉ, सी, सॉ, सीन, है ना। तो ये एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। और सेल का क्या होता है, सोल्ड होता है, तो ये वाला आ जाएगा नाइन्थ नंबर पर। और उसका पार्टिसिपल फॉर्म भी क्या होता है, सोल्ड होता है। सिंग का क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, तो ये आ जाएगा टेंथ नंबर पर, सिंग, सैंग, संग, है ना। और क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर स्लीप दिया हुआ है, स्लीप का क्या होता है, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है ना। तो ये देखेंगे हम लोग, स्लीप का एक स्लेप्ट ये दिया हुआ है आपको, है ना, 11 नंबर। और एक स्लेप्ट ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। आज जैसे हाइड का आप लोगों ने पास्ट, ये पार्टिसिपल फॉर्म तो ये दिया हुआ है, और इसका पास्ट फॉर्म कहाँ दिया है वो हम लोगों को नीचे दिया हुआ है। ठीक है, हाइड का ये पार्टिसिपल फॉर्म हम लोगों को नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे था। तो इस तरीके से हम लोग इनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और बाकी फॉर्म निकाल सकते हैं, है ना। और देख लेते हैं, जैसे ये मीट का है, मीट का है, ये मेक का है, ये लॉस्ट का, यहाँ पर आप लोग नंबरिंग कर सकते हो इजीली। ठीक है, टेल का क्या होता है, टोल्ड होता है। तो टेल का टोल्ड देखेंगे हम लोग कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टेल का टोल्ड। ठीक है, ये कौन से नंबर का है, 12 नंबर का है। तो इस तरीके से हम लोग इनको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेक का क्या होता है, टेक, टुक, टेकन होता है। तो टुक और टेकन देखेंगे कहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को, ये दिया हुआ है टुक। तो ये 13 नंबर हो जाएगा, टेकन, ये आपका। तो इस तरीके से इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। थॉट किसका होता है आपका, थिंक का होता है, ये कौन से नंबर पर है, 14 नंबर पर है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका, इसको हम लोग सिंपली 14 और 14 नंबर कर लेंगे। राइट है लास्ट आपका, राइट, रोट, रिटर्न, रोट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 15 नंबर आ जाएगा। और रिटर्न कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये 15 नंबर। तो इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सारी वर्ब्स को हम लोगों ने क्या करना था, मैच करना था उनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से, तो वो हम लोगों ने उसको मैच कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वर्ब्स को इजीली पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, और बहुत सिंपल वे में वर्ब्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो वर्ब्स को हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। वर्ब्स या इंग्लिश ग्रामर या किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर जो होती है वो कभी भी एक लेक्चर में जो है कंप्लीट नहीं होती है। उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। गहराई में जब आप लोग डीप में जाकर पढ़ोगे, डेप्थ में जाकर पढ़ोगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि एक लेक्चर में कभी भी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वर्ब्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों की इस तरीके से हम लोग वर्ब्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ब्स हमारी क्या होती हैं, उनको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो एनी काइंड ऑफ द एक्शन जब भी शो किया जाता है तो वो वर्ब्स के थ्रू ही शो किया जाता है। ये हमारी वर्ब्स होती हैं। वर्ब्स के टाइप कितने होते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था बी वर्ब्स के बारे में, जिसमें रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स भी थी हमारी। ठीक है, बी वर्ब्स के बारे में पढ़ा, इज, एम, आर, ये हमारी बी वर्ब्स होती हैं। और दूसरी हमारी क्या होती हैं आपकी, हमने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ा। तो जो रेगुलर वर्ब्स थी वो हमारी सिंपली क्या होती हैं आपके डी और ईडी को ऐड कर कर उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हम लोग बना सकते हैं। बट जहाँ जहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, जब वर्ब्स का स्पेलिंग चेंज होगा तो वो क्या होंगी आपकी रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड लुक एट द अंडरलाइंड वर्ब्स। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, कॉन्वर्सेशन को देखना है और जो अंडरलाइन वर्ब्स हैं उनको देखना है। बिकॉज अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे कि इस कॉन्वर्सेशन में हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, राघिब और रफीक, इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन दी है। हाय रफीक, डू यू, ठीक है, डू यू वॉच फिल्म्स? यस आई डू, बट आई डोंट वॉच फिल्म्स रेगुलरली। विच फिल्म डिड यू सी? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। हैव यू, इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। वॉट आर यू डूइंग? आई एम वॉचिंग। वॉट इज योर सिस्टर डूइंग? शी इज डूइंग हर होमवर्क। तो ये जितने भी हम लोगों ने सर्कल किए हैं वर्ब्स को, ये सब क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, दीज आर कॉल्ड दी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड दीज आर कॉल्ड दी हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो। तो हेल्पिंग वर्ब्स का जो रोल है वो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स हमारी जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आपकी हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको कहते हैं। तो डू, डज, डिड, एम, इज, आर, एम इज आर को बी वर्ब्स भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। और इनको हम लोग हैज, हैव्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये जब सिचुएशन जो होती है आपकी, ये डिपेंड करती है कि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी क्या है आपकी, ये डू जो है ये ऑक्सिलरी है। ये कौन सी वर्ब्स है आपकी, मेन वर्ब है। अगेन ये डज क्या है आपका, ऑक्सिलरी हो जाएगा। लाइक कौन सा हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। डू ऑक्सिलरी, रीड मेन वर्ब। ठीक है, डज ऑक्सिलरी, स्लीप कैसा हो जाएगा, मेन वर्ब। डिड ऑक्सिलरी, अटेंड कैसा हो जाएगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन सी होंगी, जहां पर कोई भी एक्शन शो किया जा रहा है, जिस वर्ड के थ्रू कोई एक्शन शो किया जा रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। और अदर आपका जो भी है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, this kind of the verbs called the auxiliary verbs or the helping verbs. So in this way हम लोग इसको simply solve कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, read the following sentence like I am learning grammar, he is eating breakfast. So यहाँ पर ये जो verbs है ना, ये helping verbs है, इनको b verbs भी हम लोग कहते हैं। ये कैसी है आपकी helping verbs है, बिकॉज ये क्या कर रही है, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर रही है। बट ये जो है अर्निंग, ओके, ईटिंग, वर्किंग, एंजॉइंग, स्लीपिंग, डांसिंग, ये जो सारी वर्ब्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब्स कहते हैं। ये मेन वर्ब्स आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। अब आपका
पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि हैज और हैव की हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। बट अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हैज और हैव दोनों की जगह पर ही क्या यूज होता है, आपका हैड यूज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम प्रेजेंट फॉर्म में बोले दे हैव वॉन द गेम, पर यही अगर चीज हम पास्ट फॉर्म में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, दे हैड वॉन द गेम। ही हैज फिनिश्ड हिज लंच, ये प्रेजेंट फॉर्म दिखा रहा है, पर पास्ट में क्या बोलेंगे, had. He had finished his lunch. If he had invited me, I would have attended the party. So in this way हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। हमारे पास नेक्स्ट मॉडल्स भी है कि मॉडल्स आपके क्या होते हैं, तो कैन, कुड, मे, माइट, दिस काइंड ऑफ द वर्ब्स कॉल्ड द मॉडल वर्ब्स। ओके, विल, वुड, शैल, शुड। तो यहाँ पर जैसे कि अगर इस कॉन्वर्सेशन में दिया हुआ है तो इस कॉन्वर्सेशन में भी आपको कुछ मॉडल वर्ब्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स को अगर हम पढ़ें, सॉरी अजीम आई कुड नॉट, yesterday I feel better before, can, may go to the school, no you should take more rest, hopefully I will be okay soon। so यहाँ पर ये जो मॉडल और एक्सिलरी वर्ब्स जो है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इनको हम कहते हैं, या फिर मॉडल्स भी हम इनको डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ये जो मॉडल जो वर्ब्स होते हैं ये क्या होते हैं, इज अ काइंड ऑफ द वर्ब्स which is used before an action verb and express the meaning like ability, permission, possibility, necessity, obligation और advice। so ये जो वर्ब्स होंगे, ये जो मॉडल वर्ब्स होंगे, इनमें हमेशा क्या होगा, या तो किसी टाइप की कोई एबिलिटी दिखाई जाएगी, या परमिशन दिखाई जाएगी, या फिर कोई एडवाइस दिखाई जाएगी। तो जब भी आप किसी भी एडवाइस को दिखा रहे हो, कोई पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हो, तो पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, ये सब हम किसके थ्रू दिखा सकते हैं, हम लोग कैन के थ्रू दिखा सकते हैं, कुड के थ्रू दिखा सकते हैं, विल या वुड के थ्रू दिखा सकते हैं, शैल या शुड के थ्रू दिखा सकते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स होंगे ना, ये कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, ये सारे जो वर्ड्स होंगे ये क्या होंगे आपके, ये वर्ड्स आपके मॉडल वर्ब्स होंगे। ठीक है, जहां पर हम इनको यूज कर रहे हैं कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है, कोई भी एबिलिटी दिखाने के लिए, या फिर किसी भी टाइप की परमिशन दिखाने के लिए जब हम इनको यूज करेंगे तो हम इनको मॉडल वर्ब्स कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये मॉडल वर्ब्स जो है समझ में आ रहे हैं। ठीक है अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की, तो मॉडल्स आर यूजुअली फॉलोड बाय इंफिनिटिव विदाउट टू। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि मॉडल वर्ब्स जो है आपके जनरली यूज होते हैं विदाउट टू के। ठीक है, एंड एनी मॉडल कैन बी यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इन फॉर्म। तो मॉडल वर्ब्स में दूसरी चीज क्या होगी, एक तो विदाउट टू यूज होंगे, कैन, कोड, मे, माइट के साथ में कभी भी टू का यूज नहीं होता है। दूसरी चीज हम लोग याद रखेंगे कि इनका फॉर्म जो है वो भी चेंज नहीं होता है, मॉडल वर्ब्स विदाउट चेंजिंग द फॉर्म यूज होते हैं। एंड देयर इज नो एस और es फ्रॉम द मॉडल्स थर्ड पर्सन फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मॉडल वर्ब्स में कभी भी एस या es भी नहीं लगता है। ये आपके कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, मॉडल वर्ब्स के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मॉडल वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। अ सिंगल मॉडल कैन एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग्स। ओके, जैसे कि अगर हम कैन या कुड की बात करें, तो एक सिंगल वर्ब है ये कैन जो है, ये आपके एबिलिटी भी शो कर सकता है। ठीक है, ये आपकी परमिशन भी शो कर सकता है, ये आपसे कुछ एडवाइस भी शो कर सकता है। तो आप देखेंगे कि ये सिंगल वर्ड कैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजों को शो करेगा। जैसे कि आई कैन स्पीक टू लैंग्वेज। सो आई कैन स्पीक टू लैंग्वेज, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, ये शो कर रहा है एबिलिटी, कि मैं एबल हूँ टू लैंग्वेजेस को बोलने के लिए। यू कैन सिट हेयर, यहाँ पर ये कैन जो है ये परमिशन को शो कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर बैठ सकते हो, ये क्या दिखा दी इसने, परमिशन दिखा दी। कैन यू लैंड मी सम मनी, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, ये शो करेगा रिक्वेस्ट को। यू कैन बाय स्टैम्प्स हेयर, अगेन ये क्या शो कर रहा है, आपकी परमिशन को शो करेगा। आई कुड स्विम, ये किसको शो कर रहा है, ये अगेन एबिलिटी को शो कर रहा है। कुड यू प्लीज, ये किसको शो कर रहा है, आपका रिक्वेस्ट को शो कर रहा है ना। तो इस टाइप से अकेला वर्ड कैन, 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 ये एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कुड, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन,
तो डिपेंड करेगा कि आपका सिचुएशन का स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन में ये जो वर्ड है ये अलग अलग चीजों को शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने कैन और कुड का यूज देखा है एग्जाम्पल्स के थ्रू, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, इनका भी यूज जो हो आपका अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट, जैसे भी आपकी सिचुएशन होंगी उस सिचुएशन में आपका डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करते हैं, तो हम ध्यान रखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जो है या फिर कोई भी लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक होती है, और किसी भी एक सिंगल रूल से आपको स्टिक नहीं होना है कि हमने तो उस रूल में ऐसा पढ़ा था तो ऐसा ही होगा। ऑफकोर्स वैसा होगा, वो रूल दिया है तो होगा, पर उस रूल के अलावा और कोई दूसरा रूल नहीं हो सकता है या फिर दूसरे यूजेस नहीं हो सकते हैं उसके, ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा लैंग्वेज को पढ़ोगे उतना ज्यादा आप अंडरस्टैंड करोगे कि लैंग्वेज के बहुत सारे यूजेस आपके होते हैं। ठीक है, तो इन तरीकों से आप लोग अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हो एक ही सिंगल वर्ड को। जैसे मे और माइट का भी दिया हुआ, इट में रेन टुनाइट, ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, यू में यूज माई कैमरा, आप मेरा कैमरा यूज कर सकते हो, ये परमिशन दिखा रहा है। मे आई कम इन, ये भी क्या दिखा रहा है, परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, इट माइट रेन टुनाइट, ये भी क्या दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो कभी भी क्या होती है आपकी, कभी गिविंग परमिशन, कभी सीकिंग परमिशन, तो सिंगल वर्ड को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। शैल और शुड का यूज भी कर सकते हैं, आई शैल विजिट यू टुमारो। ठीक है, मैं कल आपके घर आऊंगा। शैल आई क्लोज द विंडो, परमिशन मांग रहे हैं। द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड, ठीक है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, एडवाइस दिखा रहे हैं। यू शुड गिव अप द स्मोकिंग, अगेन ये क्या दिखा रहा है, एडवाइस दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। दे विल अटेंड द पार्टी, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। विल यू गो, तो ये क्या दिखा रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं। वुड यू प्लीज, रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं। वुड यू लाइक टू टेक सम टी, ये आपसे क्या बोल रहे हैं, एक चॉइस दिखा रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से माइट और ऑट टू का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यू मस्ट डू योर वर्क, ओके, इट मस्ट रेन टुनाइट, तो मस्ट का यूज कब कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पर, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग कमांड के लिए भी हम लोग यहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और मस्ट जो है मतलब कि अगर ही, आई मस्ट डू द वर्क, मतलब मुझे ये काम करना ही होगा, ऑब्लिगेशन है ये, मुझे करना ही होगा। यू मस्ट डू द वर्क, तो आपको ये काम करना ही होगा, यू हैव नो अदर चॉइस। तो इस टाइप से जब यूज दिखाते हैं, ऑब्लिगेशन जब दिखाते हैं, तो मस्ट का यूज हम लोग करते हैं। ऑट टू का यूज करते हैं, ही ऑट टू बी होम बाय 6 o'clock, वो 6 बजे तक घर पहुंच जाएगा। ही, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें पुअर की हेल्प करना चाहिए। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं, आपकी नेसेसिटी दिखा रहे हैं, या फिर दिखा रहे हैं कि सजेशंस किस टाइप से हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मॉडल वर्ब्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों का जो मॉडल वर्ब्स था, और वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों ने आज पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब्स को, आप लोगों ने वर्ब्स का पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश किया हुआ है। तो वर्ब्स का ही जो चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया है, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स पढ़े, हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स पढ़े। तो जितने भी हम लोगों ने वर्ब्स पढ़े, ये आपको चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।